Good morning, everyone. Uh, Last lectures, or all over AMD last lecture, we have studied the work with vertical form of balance sheet and income statement, and we also the practice of that. If you are a practice, then you are to recognize the number of names under the vertical balance sheet and income statement. In short, proprietor fund, your own fund, then loan fund or oath fund is secondary name. Then fictitious assets, current asset, current liability, uh, then overdraft, prepaid. The number of names are in balance sheet. Working capital, it means current asset minus current liability. Then in also income statement, the number of names like cost of goods sold, operating expenses, then office and administration expenses, non-operating expenses, non-operating income, operating income, and other than the number of names are there. If you are know and understand this the two form of income statement and balance sheets, and that the vertical form really तुम्हाला जे समजत असेल पाठ झाले असेल इझिली यू कव्हर अप then from today actually the from last lecture from here today the practical problem are started, and this practical problem we are studying रेशो अनालिसिस. आता रेशो अनालिसिस कधी जमणार आहे तुम्हाला माहिती आहे का? जर का तुम्हाला ती इनर हेड्स जसं की मी आता बोललो करंट असेट, करंट लायबिलिटी हे इनर हेड ऑफ बॅलन्स शीट आहे. बॅलन्स शीटच्या अंडर काय काय पार्ट आपण बनवलेले इन फॉर्म ऑफ दिस फॉर्मॅट ऑफ बॅलन्स शीट. तर करंट असेट आहे, करंट लायबिलिटी आहे, इन्कम स्टेटमेंट मध्ये ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस आहे, सेल आहे, ग्रॉस सेल आहे, ते जर तुम्हाला you understand and learning are covered and completed, then from today's the module 2 has started is directly work for you. If you are not possible, then तुमच्यासाठी वेगवेगळं पॅटर्न फॉलो करायला लागेल. The first pattern is must and easy and short period, जो मी आजपासून स्टार्ट केला आहे. त्यामध्ये कुणाला डाऊट आलं किंवा प्रॉब्लेम येत असेल किंवा टफ जात असेल तर फॉर जस्ट दोज स्टुडंट कॉन्टॅक्ट मी. मी त्यांना पर्सनली कॉन्टॅक्ट वर सांगेन की त्यांनी कसं करायचं, त्यांनी तो सॉर्ट आउट. आणि तरीही तुम्हाला टफ जात असेल तर तो रेशो अनालिसिसचा सम असेल तरी फर्स्ट प्रिपेअर द वर्टिकल फॉर्म ऑफ दिस प्रॉब्लेम. मग ते इन्कम स्टेटमेंट असेल तर वर्टिकल इन्कम स्टेटमेंट, वर्टिकल बॅलन्स शीट असेल तर वर्टिकल बॅलन्स. देन तुम्हाला इनर पार्ट आहे तो तुम्हाला डायरेक्टली रेशो मध्ये येणारे फॉर्म्युल्याची अमाऊंट देणार आहे दिस मेन्शन इट अँड यू सॉर्ट आउट बट मस्ट सॉर्ट. इट इज ऑल्सो 20 मार्क इन यू प्रॉब्लेम. इट मीन्स बघा आतापर्यंत आपण जी स्टडी केली तेवढी पण तुम्ही स्टडी केली तर 60 मार्क्स फॉर यू. 20 marks for income statement, 20 marks for your balance sheet, and 20 marks for today's ratio analysis. Remaining 20 marks for remaining model, working capital, making of working capital, and ratio analysis. Cash flow statement. Let's start with today's problem. In today's problem, we are studying what are the formula for balance sheets. Kya hai formula balance sheet? In last lecture, the briefly explanation of theoretical knowledge under the balance sheet and all. Okay. We are today this number of balance sheet ratios here. At the part main balance sheet ratio, we are studying your syllabus. The first is current ratio. What is first formula is current ratio. The first formula is explaining the current ratio. Under this formula, we are studying just the relation between the current asset and current liability. Relation between the current asset and current liability. Where आता तुम्हाला जो वे ऑफ फॉर्म्युला कॅल्क्युलेट करायचा असणार आहे तेव्हा तुम्हाला ते इन्कम स्टेटमेंट किंवा वर्टिकल बॅलन्स शीट बनवणं ऍज अ वर्किंग एज अ नोट बनवतो ना वर्किंग नोट तसं आहे. नॉट प्रिपेअर दे आर द वर्टिकल इन्कम स्टेटमेंट आहे. बट तुम्हाला एवढी प्रॅक्टिस झाली पाहिजे की तुमच्या फ्रंटमध्ये इन बिहाफ ऑफ फ्रंट असं जेव्हा बॅलन्स शीट तुमच्या समोर येणार आहे ऍज अ क्वेश्चन यू हॅव टू हाऊ कॅन यू पुट आउट विच वन इज करंट असेट. जर तुम्ही तो प्रॉब्लेम सॉल्व करत असाल तर यू नो इन्व्हेंटरी अंडर द करंट असेट, डेटर्स अंडर द करंट असेट, बॅलन्स शीट बँक बॅलन्स अंडर द करंट असेट, ऍडव्हान्स टॅक्स अंडर द करंट असेट, मिसलेनियस एक्सपेन्सेस अंडर द करंट असेट, नॉट फिक्टिशियस असेट.
Okay, here 1, 2, 3, 4. So this part, inventory, debtors, bank overdraft, advance, current asset मध्ये येते. हे तुम्हाला कधी पाठवणार? How can you know that? If you are the practice of vertical income statement and vertical balance sheet. The we are आणि बघा repeated एकच गोष्ट बोलतात. Practice of vertical form of the different number of your performance. जे तुम्हाला जे different two performance दिले त्यांची practice must आहे. Minimum तुम्हाला ते part झालं पाहिजे. And then under the divided by current liability. Current asset divided by current liability. Here current liability, then also current liability त्या vertical form मध्ये होतं. You know, then current liability मध्ये in terms of creditors, provident and short-term loans is included here. Right now, then the total of that mentioned here, the formulatic answer is here. First, you are explaining your all over formulas, then you are starting the problem. Then second is quick ratio. Quick, it means quickly, and ratio is and liquid. Quick or liquid, it means just the amount easily converted into the money. In your balance sheet, some are getting in the form of non-monetary form. You know, in the balance sheet मध्ये maximum non-monetary form असतं. And time of current asset and current liability त्या non-monetary form मधलं जो काय form असणार आहे त्यातलं monetary part घेणं या easily converted into monetary form. चा ratio बनवणं and ratio calculation is not quick asset or liquid ratio. It means, in short, the explaining quick assets equal to current asset, quick assets equal to current asset minus stock and prepaid. Why stock and prepaid? The both amount are not easily converted into cash, not easily converted. Stock after then sell. So then sale is it converted into cash, but sale is depend on not you. Sale is depend on your customer. Your customer purchase cannot convert into sale owner. I mean, stock is not converted into in cash. Then prepaid. Prepaid is prepaid, means paid before the period. Paid before the period. If paid before the period आहे तर इथपर्यंत वेळ नाही, time नाही आहे. You can't use it the amount. You can't use it the amount. They easily, the both are not included in quick asset. Not included. Directly deducted from current asset. The remaining current assets are called quick asset. It means, in short, look here. Inventory, it means your stock, current asset. Okay. Here say stock is not included. Remaining debtors are receiving amount. Bill receivable and debtors are receiving amount from your customer. तो कस्टमर से तुम कभी भी कैश मांग सकते हो कि मैंने तुझे क्रेडिट पे मनी दिया था या क्रेडिट पे पैसा दिया था या क्रेडिट पे गुड्स दिया हो. You just supply my amount. You just pass out my amount and credit my amount in my account. Okay. Then bank balance. It is your balance. Easily withdraw by bank. कभी चाहिए तब जाके निकाल सकते हो. Then also advance tax. Advance is prepaid. But tax अगर एडवांस में दिए तो फिर से इनकम टैक्स वाले से नहीं मांग सकते. वो कब तुम्हें मिलने वाला है? टाइम ऑफ इनकम टैक्स कैलकुलेशन के बाद एडवांस आर रिटर्न टू यू. ओके, इजीली समझा. इन्वेंट्री और एडवांस को नहीं लिया गया. ओके. देन सिमिलरली फॉर क्विक लाइबिलिटी, द फॉर्मूला फॉर क्विक लाइबिलिटी, हियर द क्विक लाइबिलिटी है current liability. It means current liability is here, all over current part of liability, minus bank overdraft and outstanding. Bank overdraft and outstanding are not included in this. Okay. Similarly here, अभी यहाँ bank overdraft और liability नहीं है. Remaining sundry creditors easily converted into cash for a supplier. Proposed dividend, proposed किया हुआ दिया नहीं है, easily converted into cash. Short term loan also loan are converted into cash. Okay. Then here debt equity ratio. Here the debt equity ratio. Okay, time of debt equity ratio, you calculate the long-term debt divided by shareholder. Long-term debt means the total debt, secure and unsecured. Total debt, secure. Debt means loan. Secure loan. Debt means loss. Loss means loan. Loan means big loss होता है. Higher loan, long-term loan. So long-term debt means loan. अब loan के कितने part बताए हुए मैंने? Secure loan and unsecured loan. Here you look here. 5% debentures, it's a secure loan fund divided by shareholder fund. Shareholder fund means share capital जो उनका होने वाला है. Then all our reserve is also the shareholder funds. Reserve किसके होते हैं? Shareholder के होते हैं. तो share capital plus reserve and surplus less fictitious means miscellaneous expenses. Okay, ये अपने फॉर्मेट में देखो है shareholder fund, उसके अंदर share capital reserve plus
रिजर्व एंड सरप्लस लेस फिक्टिशियस असेट, इसका जो टोटल आने वाली है कैपिटल एम्प्लॉय जनरेट होने वाला है इज नोन एज शेयर होल्डर फंड. ओके, देन योर स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल रेशियो. हियर टू से पहले वाला जो होता है is used on the numerator side and remaining are under the denominator side. It means stock to working capital ratio is stock upon working capital. Stock upon working capital easily formula generate होता है. Yeah, for here look here, stock it will be your inventory upon working capital. It means current asset minus current liability. अब working capital ये तुम्हारे फॉर्मेट में भी देखो, the third part of application of fund रहता है. फर्स्ट पार्ट क्या रहता है? फिक्स असेट है ना. सेकंड पार्ट इन्वेस्टमेंट एंड थर्ड पार्ट इज करंट असेट वर्किंग कैपिटल. इट मींस करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी. एंड करंट असेट और करंट लायबिलिटी क्या फर्स्ट फॉर्मूले के लिए ढूंढने वाले हैं, विच मेंशन. ओके, देन प्रोप्राइटर रेशियो. इट इज अ प्रोप्राइटर फंड. प्रोप्राइटर फंड मींस ऑल ओवर द फंड, शेयर होल्डर फंड, कैपिटल रिजर्व एंड जनरल रिजर्व. ओके, लोन अपना नहीं होता है, प्रोप्राइटर के ओनर का नहीं होता है. ओन फंड इज प्रोप्राइटर फंड, लोन फंड इज नॉट अ प्रोप्राइटर फंड. ओके, प्रोप्राइटर फंड divided by total asset, divided by total asset, which means this total asset side के पूरी total. Okay, कुछ लोग proprietor fund में लोन को भी लेते हैं. If mentioning loan, it's not right. Sorry, it's not wrong. वो wrong नहीं होगा, but the actually shareholder fund is a proprietor. Okay, actually shareholder fund, but we are included with loan fund. हम loan fund के साथ लेंगे. If it is possible, if textbook में फिर से review लिया जाएगा और then change. Then you started the solution. Then you started the one by one solution. It is helpful for you. Okay, I'm selecting this formula for calculation. Okay, look here, the first formula. What is current ratio? Under the current ratio, we are included क्या लेने वाले? करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी एंड रफ इट. तो करंट असेट के अंदर क्या आने वाला है? जो करंट असेट अपने वर्टिकल फॉर्म में जो करंट असेट में हम लोग लिया करते थे फ्रॉम ईयर बैलेंस शीट असेट साइड, तो करंट असेट में जाता है तो वो आएगा. फॉर एग्जांपल अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री. इन्वेंट्री की अमाउंट कितनी है? 1,96,770. इट इज इन्वेंट्री प्लस नेक्स्ट वन देखो क्या है. इन्वेंट्री के बाद डेटर्स also current asset है 203,942. It means 2,03,942. 2,03,942. Okay, then the next is उसके बाद क्या देखो, डेटर्स के बाद बैंक बैलेंस. यू नो बैंक बैलेंस 1,21,280. 1,21,280 is a bank balance. Okay, then next one is advance. It means prepaid. Okay, also current asset में आने वाले कितना एडवांस है? 23,675. 675. Okay, is the total number of your current asset divided by current liability. अब current liability में क्या आने वाला है? देखो current liability में क्या मेंशन करना है अपने को. तो वन बाय वन करंट लायबिलिटी के अंदर क्या क्या आने वाला है? तो लुक हियर, तो लायबिलिटी साइड. ओके, जो करंट पीरियड के लिए होता है शॉर्ट पीरियड. शेयर करंट पीरियड के लिए होता है नहीं, कंपनी खत्म होने तक शेयर यूज होने वाले लॉन्ग पीरियड के लिए. रिजर्व लॉन्ग पीरियड के लिए. देन डिवेंचर लॉन्ग पीरियड के लिए होते हैं. वन ईयर के लिए कोई डिवेंचर नहीं होता, 5 ईयर 10 ईयर नॉट. तो रिमेनिंग आर ओके. देन सन्ड्री क्रेडिटर्स. या सन्ड्री क्रेडिटर्स. तो क्रेडिटर्स की अमाउंट क्या है? 83,900 means 83,900 plus proposed dividend 65,000 plus short-term loan, it is 25,000. Okay, then the answer is, देखो आंसर क्या आता है?
हम इसका आंसर निकालने वाले हैं। तो प्लस कैलकुलेटर पे इसका टोटल करेंगे जल्दी। द टोटल इज 1,96,770 प्लस 2,03,942 plus 1,21,280, 1,21,280 plus 23,675, 23,675. It's become 5 lakh. कितनी हुई टोटल मालूम? 5,45,667. Okay. Then total of current liability. It's become कितनी है देखो 83,900 plus 65,000 plus 25,000. It's become 1,73,900. Okay. Then the answer is देखो कितना आता है 5,45,675, 5,45,667 divided by 17390. It's become sorry. Five lakh 45,667 divided by 1,73,900. It's become 3.13 is to 1. 3.13 is to 1. Okay. The answer is 3.13 is to 1. Okay. It means the current asset is 3.13. Time of current liability is 1. Okay. Then the next formula is quick or liquid liability. इसका formula देखिए क्या है? The formula is quick asset upon quick liability. Formula is quick assets upon quick liability. अब time of quick asset and quick liability. तो क्विक एसेट का फॉर्मूला क्या बोला हुआ है? करंट एसेट, द टोटल अमाउंट ऑफ करंट एसेट क्विक एसेट की अमाउंट क्या लेनी है हमें? टोटल अमाउंट ऑफ करंट एसेट विच इज हमें यहाँ मिल चुकी है 5,45,667. 5 lakh आई एम मेंशनिंग हियर 5,45,667 minus into bracket 667. अब इसमें से क्या कट होने वाला है? स्टॉक एंड प्रीपेड. स्टॉक की अमाउंट नहीं लेनी है, तो स्टॉक की अमाउंट क्या है देखो यहाँ पे इन्वेंट्री इट मींस स्टॉक 1,96,770. 1,96,770 प्लस और कौन सी अमाउंट नहीं लेनी है? प्रीपेड यानी एडवांस की. एडवांस टैक्स है यहाँ पे 23,675. 23,675 bracket complete. The look here, the amount 1,96,770. It means stock. It means stock or inventory plus and prepaid. It means advance 23,675. These are deducted from your current asset. It's become quick asset. It's become quick asset. Then quick liability के लिए फॉर्मूला क्या बोला हुआ है उसने? क्विक लाइबिलिटी के लिए फॉर्मूला क्या बोला हुआ है उसने? करंट असेट
क्या बोला हुआ उसने, करंट असेट, टोटल अमाउंट ऑफ करंट असेट 1,73,900 माइनस इसके आगे उसने क्या बोला हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड आउटस्टैंडिंग आर नॉट इंक्लूडेड। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, शॉर्ट टर्म लोन या ओवरड्राफ्ट, ओके, जो बैंक शॉर्ट पीरियड के लिए देती है। तो शॉर्ट टर्म लोन है 25,000, इट इज नॉट इंक्लूडेड हियर, एंड आउटस्टैंडिंग, अगर आउटस्टैंडिंग यहाँ कुछ भी नहीं है तो जस्ट 25,000 यहाँ से लेस होगा, ओके। देन द कैलकुलेशन ऑफ दिस फॉर्मूलेटिक सिस्टम, हमें जो आंसर आने वाला है, अब मैं आंसर डायरेक्टली यहाँ मेंशन करता हूँ, लाइक 5,45,675, 45,667, 5,45,675, 5,45,667 minus 1,96,770, 1,96,770 minus 23,675. It's become 3,25,000. It's become इनकी टोटल हुई है 3,25,222. ओके, एंड हियर की टोटल कितनी हुई है, देखो 1,73,900 minus 25,000, 1,73,900 minus 25,000, it's become 1,48,000, 1,48,900. Okay, then the answer is 3,25,222 divided by 1,48,900. It's become 2.1 is to, it's become, answer is 2.18 is to 1 is to 1 रेशियो, इसलिए इसे इस तरह लिखा जाता है, यानी जो आंसर आएगा उसके आगे is to 1 लगाना है, इसमें यहाँ आंसर आएगा 3.31. ओके, यहाँ आंसर आएगा 3.13 is to 1, यहाँ 2.18 is to 1. ओके, द नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्विक एसेट कैसे लिया था आपने, करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड, करंट एसेट स्टॉक माइनस प्रीपेड. ओके, चाहे तो मैं ये यहाँ से कट करके आई मेंशन हियर, quick asset का formula, then from this is solution. Okay, the answer is 2.81 is to 1. Then debt equity ratio, calculation of debt equity ratio के लिए क्या बोला हुआ है इसमें, long term debt, so क्या बोला है, mention long term debt, it means loan, all types of loan. तो here long term debt देखो कितना है, लोन कितने, डिबेंचर है only 5% डिबेंचर 1,57,500 mention here, 1,57,500. Okay, then shareholder fund, it means share capital. अब डायरेक्टली मैं लेने की कोशिश करता हूँ, इससे तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएंगी. शेयर कैपिटल 6,50,000 प्लस रिजर्व. अब रिजर्व देखो क्या है, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व और प्लस डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, और इन सब की रिजर्व की टोटल है 8,15,410, 8,15,410, 8,15,410. किस किस की टोटल है, किस किस की टोटल है पता है, द टोटल इज शेयर कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व. ओके, और आउट ऑफ दैट फिक्टिशियस असेट को लेस किया जाता है, लेस फिक्टिशियस असेट 1550, 1550, 8,13,000. the total amount is 8,13,870.
60. Okay, the answer is, या डायरेक्टली इसके आगे ही मैं आंसर लिखता हूँ. The answer is 1,57,500 divided by 8,13,860. It's become 0.19. 0.19. अब डेट इक्विटी रेशियो 0.19 आया. इसको तुम्हें if you want then it's converted into also in percent. into 100 करने के बाद जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 19 पॉइंट. तो इसको भी तुम लोग चाहिए तो बाद में it's converted into percent. then it's become 19%. रेशियो है तो उसको परसेंट में भी ले सकते हो. इफ यू नॉट गॉट तो नेवर मल्टीप्लाई बाय 100. बोथ आर द 0.19 और 19%. बोथ आंसर आर परफेक्टली करेक्ट. ओके, फुल्ली करेक्ट. देन स्टॉक अपॉन वर्किंग कैपिटल. द फॉर्मूला इज स्टॉक अपॉन वर्किंग कैपिटल. अब स्टॉक कितना है? इट मींस इन्वेंट्री. इन्वेंट्री की अमाउंट कितनी है अपनी? लुक हियर फर्स्ट टाइम 1,96,770. 1,96,770 is your stock. अपॉन वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या उसने बोला है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी. बोथ आर द टोटल इज हियर. अपने फर्स्ट फॉर्मूले में करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की टोटल मिली हुई. करंट एसेट कितने? डिफरेंट बिटवीन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी. 5,45,667. 5 लाख. मैं डायरेक्ट वहां पे एक बार लिखता हूँ ताकि तुम्हें प्रॉब्लम ना हो. करंट एसेट कितना है? 5,45,000. 5,45,661. 665 क्या था वो? 667. 5,45,667 माइनस करंट लायबिलिटी. करंट लायबिलिटी कितनी है? 1,73,900. 1,73,900. It's become 5,45,000 5,45,667 minus 1,73,900. It's become 3,71,767. 3,71,767. Okay, and the solution, the perfect answer is stock upon working capital. कितना आएगा? देखो स्टॉक कितना है? 1,96,770 minus divided by 3,71,767. It's become 0.52. 0.52. 0.52. If you want is like this. ऐसा भी यूज कर सकते हो या फिर मल्टीप्लाई बाय. अगर तुम्हें पॉइंट में लिखना पसंद नहीं है तो मल्टीप्लाई बाय 100. Okay, it means also answer multiply by 100. It's become 52%. 52%. कितना आएगा? 52% आएगा. 52% आएगा. 52% कब आया? अगर इंटू 100 नहीं करेंगे तो जस्ट 0.52 आएगा. अगर इंटू 100 करेंगे तो 52% आएगा. परसेंट मीन्स इंटू 100 मल्टीप्लाई बाय 100. इट मीन्स परसेंट. ओके, देन द नेक्स्ट फॉर्मूला प्रोप्राइटर रेशियो. प्रोप्राइटर रेशियो, it means proprietor fund upon total asset. It means proprietor fund upon total asset. अभी proprietor fund यानी क्या होता है?
शेयर होल्डर फंड प्लस लोन फंड, है ना, ओन फंड प्लस लोन फंड इज प्रोप्राइटर फंड, यानी यहाँ तक की टोटल, यहाँ तक की टोटल। अब जैसे कि 6,50,000 प्लस 2,500 क्या है जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, प्लस 1,20,410 ये जनरल रिजर्व है, प्लस 42,500 ये क्या है 42,500 अपना डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, प्लस 33,777 इज योर प्रॉफिट एंड लॉस, ओके, प्लस लोन पर कितना है 1,57,500 माइनस फिक्टिशियस असेट कितने 1,550, इट्स बिकम द अमाउंट इज 1,10,05,137, अमाउंट बिकम, अमाउंट कितनी आई प्रोप्राइटर फंड की 10,10,05,137, it become 10,05,137, 10,05,137। अब ये कैसे आई है, अगर इसमें कुछ डाउट है आई मेंशन हियर, फिर से ये फॉर्मूला में मेंशन करता हूँ। वन लैख 57,500, यहाँ क्या क्या आने वाला है ओन फंड प्लस लोन फंड। अभी ओन फंड में क्या आने वाला है शेयर होल्डर फंड, तो शेयर कैपिटल देखो क्या है, शेयर कैपिटल 6,50,000, ओके, मेंशन हियर 6,50,000 प्लस रिजर्व, कैपिटल रिजर्व 2,500, कैपिटल रिजर्व 2,500 प्लस इसके बाद क्या आने वाला है देखो जनरल रिजर्व 1,20,410, 1,20,410, it is your general reserve. Then DRR, debenture redemption reserve 42,500 plus 42,500 DRR प्लस, और इसके बाद क्या आने वाला है, और कोई कुछ आ सकते हैं क्या देखो वहां से PNL 33,777, 33,777, ओके, प्लस इसमें लोन भी आएंगे, लोन क्यों आएंगे बिकॉज लोन इज मेंशन दैट, बिकॉज हम यहाँ एम्प्लॉय फंड निकाल रहे हैं, तो एम्प्लॉय फंड यानी काम के लिए इस्तेमाल होने वाला फंड, एम्प्लॉय वर्क के लिए, तो वर्क के लिए ओन फंड प्लस लोन फंड, ओके, तो PNL के बाद 5% डिबेंचर्स 1,57,500 थे, 1,57,500, ओके, और इसमें से चाहिए तो चाहिए नहीं फिक्स ही माइनस फिक्टिशियस असेट, इसमें से क्या होने वाला है लेस होने वाले हैं, जो कि यहाँ पे एक ही है फिक्टिशियस असेट जिसकी अमाउंट है मिसलेनियस एक्सपेंसेस 1,550, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 1,550, द टोटल इज 10,05,137 अंडर टोटल असेट। अब टोटल असेट के लिए तुम्हें इतना कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, इतना लिख के नहीं बैठना है, टोटल असेट बैलेंस शीट के असेट साइड की या लाइबिलिटी साइड की टोटल होती है 11,80,587, 11,80,587, ओके, यही अमाउंट यहाँ मेंशन होगी 11,80,587, ओके, देन द आंसर इज, आंसर देखो निकालते हैं 11,80,587 is become 0.85%,
0.85. Okay, 0.85. If you multiply by 100, it becomes in percent. It become in percent. It is 85%. Okay. Here your balance sheet ratios. First problem are covered. From next lecture, minimum 2 problem are covered because 5 formula तुम्हाला समजून जायचं आहे. जस्ट बॅलन्स शीट येणार आहे. त्या बॅलन्स शीट मध्ये जे काय येणार आहे त्या आधीच आपण इन्कम स्टेटमेंट वगैरे बनवताना आपल्याला ते पाठ झाले. जस्ट आपल्याला फॉर्म्युलेच्या हिशोबाने त्या अमाऊंट इथून पुट करायचे आहेत आणि ते इथे मेन्शन करायचे आणि त्यांची टोटलच्या हिशोबाने रेशो करायचे. करंट रेशो, क्विक रेशो पर्यंत तुम्ही 1:1 हा रेशो फॉर्म लिहिलेला चालेल. and from that equity ratio, then stock turnover ratio and proprietor ratio, long listing ratio त्यांना पर्सेंट मध्ये शो करण्याचा प्रयत्न करा. in the clear and best form. Okay, here the 5 formula, each formula for 2 marks, 10 mark problem. Okay, yeah, the 5 formula for you, it is balance sheet ratio. Any doubts in this lecture, please contact me. and further हे फर्स्ट प्रॉब्लेम आहे, थोडक्यात टफ गेला असेल, आणखी 2-3 याच्यातले प्रॉब्लेम होणार आहे. त्यानंतर आपण प्रॉफिट अँड लॉस रेशो, इन्कम स्टेटमेंट रेशो बघणार आहोत. तेव्हा लवकर गडबडून जाऊ नका. काय जमतोय की जमत नाहीये, सर पास जात आहे, त्याच्यावर काय इश्यू असेल तर कॉन्टॅक्ट मी डायरेक्ट बोलतोय, कॉन्टॅक्ट मी तुम्हाला ते सांगेन. आणि बस फॉर्म्युले आधी पाठ करून घ्या. ओके, ऑल ऑफ यू, थँक्यू.